آخر کار مکافات عمل نے اپنا رنگ دکھا ہی دیا۔ نہ صرف شرین کے منہ پر اسی طرح سے انکار مارا گیا جس طرح سے شرین نے انس کو بے عزت کر کے انکار کیا تھا، لیکن اب شیان بھی مرد بن گیا ہے اور اپنی بہن کا بدلہ لینے پہنچ گیا ہے۔ تب اسے ذرا شرم نہیں آئی تھی جب انسا کی ویڈیو بنا کر وائرل کر رہا تھا۔ تب اسے بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں ہو رہا تھا کہ کل کو یہ کام اس کی بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تو فہام نے شرین کے ساتھ بہت کم کیا ہے، صرف اور صرف انگیجمنٹ توڑی ہے اور اس سے کچھ ڈنرز کروائے ہیں، ورنہ اگر فہام بھی شرین کے ساتھ وہی کرتا جو شیان نے انسا کے ساتھ کیا تھا تو شیان کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتا۔ بس اتنا سننے پر شیان کا خون کھولنے لگا ہے کہ فہام نے نہ صرف اس کی بہن سے انگیجمنٹ توڑ دی ہے بلکہ اسے دبئی لے کر جانا چاہتا تھا، اور اسی غصے میں شیان فہام کے گھر پہنچ گیا ہے۔ لیکن اب آگے شیان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا شیان واقعی ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا؟ یہ کام فہام خود کرے گا یا پھر پولیس انکاؤنٹر ہوگا؟ آخر شیان کو اس کے کیے کی سزا کیسے ملنے والی ہے؟ کیا شیان کو ایک بہت بڑا دھوکہ ملنے والا ہے؟ یہ جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ فہام نے تو شرین جیسی لڑکی کی بولتی بند کر دی۔ فہام نے شرین کو اس کی اصلیت دکھا دی کہ بھائی تم جیسی لڑکی سے میں کیوں شادی کرنے لگا؟ تمہیں بھی بہت شوق تھا میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا تو میں نے بھی تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر لیا، اور شادی تک تو یہ بات کبھی نہیں جائے گی۔ یہ تو ہم سب کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ فہام جیسا آدمی کبھی بھی شرین سے شادی نہیں کرے گا، لیکن اگر دیکھا جائے تو سب کچھ ویسے ہی ہوا ہے جیسے شرین نے انس کے ساتھ کیا تھا۔ کس طرح سے شرین انس کو کیڑا سمجھتی تھی، اسے حقیر اور گھٹیا سمجھتی تھی، آج اس کے ساتھ وہی سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ چیز اب شرین سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ فہام کہے گا کہ تم جیسی لڑکی سے میں کبھی شادی نہیں کر سکتا تھا، تھوڑا سا اور انجوائمنٹ کے لیے میں تمہیں دبئی لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ تم اس بات کو شادی تک لے جاؤ گی۔ میں تو اس آدمی سے نفرت کرتا ہوں جو میرے بھائی کو ذرا سا نقصان پہنچاتا ہے، اور تمہارے بھائی نے تو میرے بھائی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تمہیں کیا لگا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ پکڑو اپنی انگیجمنٹ کی رنگ، اور یہ رنگ تم اپنے پاس ہی رکھو، کیونکہ آخر کار تم نے میرے ساتھ ڈنرز تو کیے ہیں نا۔ جو تھوڑا بہت تم نے مجھے ٹائم دیا ہے اس کے لیے یہ رنگ میں تم پر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سن کر شرین پر تو گھڑوں پانی گر جائے گا۔ اسے اندازہ تک نہیں تھا کہ فہام قریشی اس کے منہ پر ایسا تماچا مارے گا، لیکن جو تماچے آج تک شرین دوسروں کے منہ پر مارتی آئی ہے یہ تماچا تو بہت چھوٹا ہے۔ اتنی دیر میں نہ صرف انس گھر پہنچ جائے گا بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ مرسلین بھی گھر پر پہنچ جائے گا۔ جیسے ہی وہ یہ ساری باتیں سنیں گے تو وہ اسی وقت فہام کو پکڑ لیں گے۔ انس اور مرسلین پکڑ کر فہام کی اچھی خاصی چھترول کریں گے، ایسے ایسے جوتے ماریں گے کہ فہام کا منہ سوج جائے گا۔ کچھ بھی ہو انس کے لیے شرین تو بہن سے کم ہے نہیں، اس لیے انس بھی اس سارے معاملے میں کود پڑے گا اور فہام کو اپنے تایا جان کے ساتھ مل کر اچھی خاصی دھلائی کرے گا۔ تایا جان اور اس کے بعد انس دونوں ہی فہام کو پکڑیں گے اور دھکے مارتے ہوئے گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ انس بھی کہے گا کہ آئندہ اگر تم مجھے شرین کے آس پاس بھی نظر آئے نا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم جیسے آدمی کے ساتھ ہم خود رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی فہام وہاں سے جائے گا تو شرین بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چھپ جائے گی۔ مرسلین واپس آ کر شازیہ سے کہے گا کہ جاؤ جا کر سنبھالو اس کو، پہلے ہی ہم نے اسے اتنا سمجھایا تھا کہ اس آدمی کے پیچھے نہ لگے، لیکن اس نے ہماری ایک بات نہ سنی، اب شکل دیکھ لی نا اس کی، اصل چہرہ سب کے سامنے آ گیا نا اس کا، اسی چیز سے ہم ڈرتے تھے، لیکن تم ماں بیٹیوں نے ہماری بات نہیں سنی۔ مرسلین بھی اپنے کمرے میں چلا جائے گا اور انس بھی انسا کے پیچھے پہنچ جائے گا۔ شازیہ جیسے ہی شرین کے کمرے میں جائے گی تو شرین بہت زیادہ رو رہی ہوگی۔ شرین کہے گی کہ آپ نے بہت غلط کیا امی میرے ساتھ، میں نے کبھی انس کی باتوں کو سیریس لیا ہی نہیں، مجھے لگتا تھا کہ وہ صرف اور صرف مجھ سے جلتا ہے، وہ میری خوشیاں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ بابا کی بات میں نے اس لیے نہیں مانی کیونکہ وہ انس کو امپورٹنس دے رہے تھے، لیکن آپ تو بتا سکتی تھی نا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، آپ نے کیوں مجھے نہیں بتایا کہ وہ شخص میرے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ مائیں تو پہلے ہی سب کچھ دیکھ لیتی ہیں، آپ کو ذرا سا بھی امی شک نہیں ہوا اس کی بدنیتی پر؟ ماں باپ کو تو ایک دم پتہ چل جاتا ہے، اولاد کی طرف بڑھتا ہوا خطرہ ماں باپ ایک منٹ میں بھانپ لیتے ہیں، پھر
आपने क्यों नहीं भांपा अम्मी, आपने क्यों नहीं मुझे बताया? वैसे यहाँ पर चाहिए तो सही कि शाजिया अपना जूता उतार ले और इसके लंबे से मुंह पर छित्तर ही मारती जाए। कितनी दफा इसे मुरसलीन और अनस ने मना किया था, और इतना ही नहीं बल्कि शाजिया ने भी इसे कई दफा कहा कि वो आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन फहाम की दीवानी शरीन ने तो एक बात ना तो अनस और मुरसलीन की मानी, ना दादा की मानी। दादा बेचारे को तो किसी खाते में ही नहीं लाती थी, और माँ की बात को तो उसी वक्त इग्नोर कर दिया। और अब जब असली हकीकत सबके सामने आई है तो शरीन ने भी सारा का सारा इल्जाम अपनी माँ शाजिया पर डाल दिया। शाजिया कहेगी कि बहुत शातिर खिलाड़ी था वो, उसने तो कभी शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। तुम देख तो सकती हो कि उसने कितनी अच्छे तरीके से हमें अपने जाल में फंसाया था, और तुम उसके जाल में फंस गई थी। हम तो फिर भी तुम्हें बार बार मना कर रहे थे शरीन, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। शरीन कहेगी कि मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज फहाम ने जो मेरी तजलील की है, आप सोच भी नहीं सकती कि ये मुझे कितनी तकलीफ दे रही है। इसके बाद शरीन भागती हुई अपने कमरे में जाएगी, डीजल की बोतल उतारेगी और उसी वक्त फेंकना शुरू कर देगी। शाजिया भी उसके पीछे भागेगी और शरीन को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन आखिरकार शाजिया शरीन को रोकने में कामयाब हो ही जाएगी। मेरे ख्याल से तो शाजिया को शरीन को रोकना ही नहीं चाहिए, बल्कि 2 थप्पड़ शरीन के मुंह पर मारने चाहिए, क्योंकि इसे कितना मना किया था सब लोगों ने मिलकर कि फहाम कुरैशी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन उस वक्त शरीन के आंखों पर तो सिर्फ और सिर्फ फहाम कुरैशी की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। शरीन ने सारे रेड फ्लैग्स देखे थे फहाम कुरैशी के, लेकिन उसके बावजूद शरीन ने सब कुछ इग्नोर कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि अंसा भी आकर अब शरीन को समझाएगी और कहेगी कि एक घटिया आदमी के कुछ भी कह देने से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। शरीन जाओ, जाकर आराम करो और उसको इससे ज्यादा बुरा जवाब देना। शाजिया शरीन को लेकर कमरे में जाएगी और उसके बाद जैसे ही कमरे में वापस आएगी तो मुरसलीन कहेगा कि देख लिया ना अंजाम क्या हुआ। वो घटिया शख्स ऐसी ऐसी बातें कर रहा था शरीन के बारे में कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता शाजिया। मेरा दिल तो चाहता है कि उसके घर जाऊं और जाकर उसका वो हशर करूं कि वो जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। इतना ही नहीं बल्कि आवाज तक ना निकले उसके मुंह से। मुझे तो अब मुरसलीन पर इतना गुस्सा आ रहा है कि जब अपनी बेटी की बारी आई तो उस आदमी का मुंह हाथ पांव तोड़ने तक आ गया, लेकिन वही काम बल्कि उससे भी घटिया काम जब अपने बेटे ने किया तो उसे बचाने के लिए हर हद पार कर दी। ऐसे ही 2 मुँहे सांपों के साथ यही सब कुछ होता है। मेरे ख्याल से तो मुरसलीन ये सब कुछ डिजर्व करता है, लेकिन अभी जो कुछ वो डिजर्व करता है वो बहुत जल्द उसके सामने आने वाला है, क्योंकि शियान ने न सिर्फ अपने बाप का पैसा डिबोने का फैसला कर लिया है बल्कि गलत संगतों में पड़कर अब सारा बिजनेस बंद करवाने का जुम्मा भी शियान ने उठा लिया है। लेकिन ये सब कुछ देखने से पहले शियान जिंदा नहीं रहेगा। शियान जैसे ही घर आएगा तो उसे पता चलेगा कि किस तरह से फहाम कुरैशी ने शरीन की बेइज्जती की, उसके मुंह पर रिंग मारी और उससे कहा कि ये रिंग रख लो, और किस तरह से शरीन को वो दुबई लेकर जाना चाहता था। इतना ही नहीं बल्कि शियान को ये भी पता चलेगा कि अनस और मुरसलीन ने मिलकर उसकी अच्छी खासी धुलाई की है, लेकिन फिर भी शियान का खून खोलने लगेगा। उसे ये बात यकीन नहीं आएगी कि शरीन के साथ ये सब कुछ भी हो सकता है, और सबसे बढ़कर कि वो अपनी बहन के साथ ये सब कुछ होता देखता रहे और कुछ करे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए शियान अपनी बहन का बदला लेने के लिए पहुंच जाएगा, लेकिन शियान को भी याद नहीं है कि उसने खुद कितने घटिया काम किए हैं। फहाम भी जैसे ही घर जाएगा तो उसकी माँ इतनी ज्यादा हैरान होगी और कहेगी कि तुम्हारे मुंह पर चोटें कैसे लगी हैं, सच सच बताओ क्या हुआ है। फहाम कहानी करेगा और कहेगा कि बस शरीन के घर गया था मैं, लेकिन वो घटिया लोग शादी करना डिजर्व ही नहीं करते। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, मैं कुछ टाइम लेकर ये शादी करूंगा, लेकिन उन लोगों ने मिलकर मुझे अच्छा खासा ना सिर्फ धोया है बल्कि रिंग भी वापस ले ली है। वो तो इतने घटिया लोग हैं कि उनके साथ शादी क्या, मैं तो कोई रिश्ता भी रखना नहीं चाहूंगा। और इतनी देर में शियान भी घर पर पहुंच जाएगा। शियान कहेगा कि कहाँ हो फहाम कुरैशी, बाहर निकलो, तुम्हारा मुंह तो आज मैं तोड़ूंगा। फहाम के साथ साथ उसकी माँ और भाई भी बाहर निकल आएगा, और फहाम को देखते ही शियान गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि तुमने मेरी बहन को फालतू समझा हुआ है। क्या कहा था तुमने मेरी बहन को कि उसे दुबई लेकर जाना चाहता है? मैं तुम्हारा मुंह ना तोड़ दूं। अपने माँ बाप को करतूत नहीं बताए आपने तुमने कि किस तरह से तुमने मेरी बहन को दुबई ले जाने की ऑफर की थी, और जब उसने ये ऑफर ठुकरा दी तो तुम शादी की एंगेजमेंट तोड़कर भाग आए हो। तुमने तो ये तक कह दिया कि तुम शादी नहीं करना चाहते। तुम जैसे घटिया इंसान से कौन शादी करेगा? फहाम कहेगा कि बस अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे राज फाश कर दिए ना तो तुम किसी को शक्ल दिखाने के काबिल तक नहीं रहोगे। तुम मुझे कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी बहन को दुबई ले जाने की ऑफर की, और तुमने खुद क्या किया शियान? शायद तुम भूल गए हो, लेकिन मैं तुम्हें याद करवा दूं कि तुमने कितने कितने घटिया काम किए हैं। वो
तुम ही थे ना जिसने वो वीडियो अनस और अंसा की बनाकर वायरल की थी। शायद तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मैं अच्छे तरीके से सब कुछ निकलवा चुका हूँ। तुम जैसे घटिया इंसान से मैं बात करना भी पसंद नहीं करता। तुमने तो वो कर दिखाया जो किसी ने आज तक सोचा भी नहीं था, और जो मैं तुम्हारी बहन के साथ करना चाहता था। खैर, मैंने तो सिर्फ उसे दुबई ले जाने की ऑफर की थी, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान ने क्या कुछ नहीं किया। मेरे भाई का एक्सीडेंट किया, उसके बाद उस लड़की की घटिया वीडियो बनाकर वायरल की। तुम खुद को किस कैटेगरी में रखते हो और मुझसे लड़ने आ गए हो? कम से कम मैंने तुम्हारे जैसा घटिया काम तो नहीं किया तुम्हारी बहन की वीडियो बनाकर। और ये चीज शियान को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाएगी, लेकिन शायद यहाँ पर शियान को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। फहाम कुरैशी की सच्चाई के तमाचे अब जैसे ही शियान के मुंह पर पड़ेंगे तो शियान को अक्ल आएगी। शियान को याद आएगा कि वाकई ही उसने सबसे घटिया काम किया है। तब उसे एहसास होगा कि वाकई ही मकाफात अमल जरूर होता है। फहाम कहेगा कि गार्ड्स अपनी गन इस इंसान की तरफ कर लो, क्योंकि ये शख्स इस घर से बचकर नहीं जाना चाहिए। इतनी बातें सुनने के बाद वैसे ही शियान की बोलती बंद हो गई थी। अब बंदूकें देखकर तो उसकी सांसें भी अटक जाएंगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर फहाम कुरैशी खुद अपनी गन निकालेगा और शियान को गोली मार देगा और कहेगा कि तुम यही डिजर्व करते हो, मैं तुम्हें यही सजा देना चाहता था, पहले तुम्हारी बहन को इस्तेमाल करके और जब तुम यहाँ पर आओ तो तुम्हें जान से मार के। तुमने क्या लगा कि मेरे भाई को एक खरोच देने वाला शख्स मुझे पसंद नहीं है, और तुम जैसे शख्स को जिसने मेरे भाई को मौत के मुंह में धकेल दिया मैं जिंदा जाने दूंगा? अब तो तुम्हारी लाश ही तुम्हारे घर पहुंचेगी। मुझे लगता है कि अब फहाम कुरैशी अपने हाथों से शियान का काम तमाम कर देगा, जिसके बाद शियान की लाश जैसे ही मुरसलीन के घर पहुंचेगी तो अनस भागता हुआ मुरसलीन को बुलाएगा और कहेगा कि वो शियान पता नहीं कहाँ गुस्से में गया था सब कुछ सुनकर, शायद फहाम से लड़ने, और अब शियान की लाश घर आ गई है। मेरे ख्याल से तो ये सब कुछ सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाला है। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि आखिरकार शियान की इस तरह से मौत हो जाएगी। शाजिया तो धाड़े मार मार कर रोएगी, क्योंकि वो तो अपने बेटे से एक मिनट की जुदाई बर्दाश्त नहीं करती थी, और अब जो कुछ उसके बेटे के साथ हो चुका है उसके बाद ये सब लोग मिलकर फहाम कुरैशी के खिलाफ कंप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितना वो अमीर आदमी है वो कभी भी इनके चंगुल में नहीं फंसेगा, बल्कि पुलिस उसे पकड़ ही नहीं पाएगी। इससे पहले कि फहाम के खिलाफ कोई सबूत मिले वो अपनी फैमिली को लेकर बाहर शिफ्ट हो जाएगा। मुरसलीन की कमर टूट जाएगी। इसके बाद मुझे लगता है कि मुरसलीन को होश आएगी। जब अपना बेटा जिंदा नहीं बचेगा तो फिर उसे पता चलेगा कि जायदाद अब किसी के और के हिस्से में नहीं जाएगी, सारी की सारी अनस के हिस्से में ही जाने वाली है। हो सकता है कि तब मुरसलीन अनस को दोबारा से अपनी जायदाद में हिस्सा दे दे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई शियान को अब उसके किए की सजा मिलने वाली है? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।